Assalamu alaikum warahmatullah. Good afternoon, everybody. Welcome back to the session after a very long period of time. In this session, we are going to discuss about why do we need cardiovascular system or circulatory system in the field of physical education through the medium of games and sports or in the field of sports science. Why do we need cardiovascular system or circulatory system? If we take an example of an ordinary man or a layman, what he thinks, the layman thinks that an athlete is said to rightly run with their legs rather with their heart. क्योंकि लेमैन की थिंकिंग यही है, उसकी परसेप्शन यही है, उसका पर्सपेक्टिव यही है कि एथलीट जो है, एक खिलाड़ी जो है, ये कैसे चलता है, अगर इसको रनिंग करनी हो तो इसकी लेग्स जो है मैकेनिकल वर्क ऑफ रनिंग जो है इसकी लेग्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है. और बिकॉज ही डजंट नो अबाउट द हार्ट, because he doesn't know, back then there is a mechanism, back then there's a system, major system, which coordinates all other systems, which coordinates all the functions of all other different systems, which links and coordinates with the other systems. He doesn't know about this very mechanism. He generally thinks athlete is, he runs with your heart, he runs with your legs, he throws with your arms. He generally knows athlete perform athletic activities either with your upper limbs or upper extremities or with your lower extremities. He generally knows this concept. But back then he doesn't know. There is a mechanism, there is a scientific mechanism, there is a procedure जो बैक द एंड काम करता है, जो बैक द एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज को कोऑर्डिनेट करके चलाता है. ही डजंट नो दिस थिंग. बल्कि उसका स्टेटमेंट यही होता है कि एथलीट इज राइटली सेड टू रन विद देयर लेग्स रादर विद देयर हार्ट. नो डाउट कि एथलीट लेग से नहीं चलता है. इन केस ऑफ रनिंग, एथलीट थ्रोइंग के दौरान, इन केस ऑफ थ्रोइंग, वो अपनी आर्म्स को यूज नहीं करता है. वो वहां पे मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ थ्रोइंग जो है वो आर्म्स के अपर एक्सट्रीमिटीज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती है. देयर इज नो डाउट, ऑफ कोर्स लेग्स के द्वारा मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द रनिंग प्रोड्यूस होती है. इन केस ऑफ द थ्रोइंग, देयर वी सी द मैकेनिकल मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड by the arms, upper extremities. Of course, there isn't any kind of doubt in this case. But the right and the correct statement, the right and the correct definition is athlete is rightly said to run with their heart. Athlete is rightly said to run with their heart rather with their legs. Athlete actual में, in the actual sense, वो heart से चलता है. In case of running, he runs with the heart. Of course, there is no doubt. There we see the mechanical movement, mechanical work in the legs. We see the mechanical work in the legs. But back the end, he runs with the heart. How he runs with the heart? How he did? There arises a question. यहाँ पे arise एक question होता है कि how he runs with your heart. If we see there is the mechanical movement, that mechanical movement of running that is seen in their legs, and as per the layman, then obviously he runs with their legs. Athlete runs with their legs. Then the layman's जो concept है, layman की perspective जो है, layman की perception regarding the this running जो है, he is true. Here is a question that how athlete is rightly said to run with their heart rather with their legs. Yes, of course,
एथलीट जो है वो हार्ट से रन करता है rather with their legs. How? Because this cardiovascular system, it is that kind of system. It plays a very vital role. It plays a very crucial role. It plays very utmost role in the field of physical education through the medium of games and sports, in the field of sports science. Because this cardiovascular system, it is regarded as primary determinant of performance endurance. Number one. And number two, this is the cardiovascular system which is regarded as an integrative, central integrative physiological system. It is regarded as central integrative physiological system. That is why athlete is rightly said to run with their heart rather with their legs. And this is the system, cardiovascular system or the circulatory system. It is the system which coordinates and which links with the functions of different systems of the body. Like it links with the respiratory system, or it coordinates with the respiratory system. It coordinates with the muscular system. It coordinates with the renal system. It coordinates and links with the nervous system. That's why we call it, that's why we consider it, that's why we regard it. It is the central integrative physiological system. Now, if we take the example of this respiratory system. Respiratory system जो है, respiratory system generally we usually know कि respiratory system जो होता है ये it is wholly and solely responsible to deliver the oxygen. इसका काम ही होता है कि ऑक्सीजन डिलीवर करना है टू द वर्किंग टिश्यूज, टू द टारगेटेड ऑर्गन्स. इसका जनरली रेस्पॉन्सिबल होता है. एंड रिटर्न रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैट दोज टारगेटेड ऑर्गन्स, फ्रॉम दोज टारगेटेड टिश्यूज, वो ऑक्सीजन रिटर्न करना अगेन टुवर्ड्स द लंग्स. ये रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए. लेकिन मैकेनिज्म क्या है इसका? देखिए, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रनर, एक स्प्रिंटर की एग्जांपल ले लेंगे. एक स्प्रिंटर ने 100 मीटर रनिंग करनी है, एक स्प्रिंटर ने 200 मीटर रनिंग करनी है, एक स्प्रिंटर ने 400 मीटर रनिंग करनी है एक स्टैंडर्ड ट्रैक पे. वो कैसे अपने हार्ट से चलता है रादर विद योर लेग्स. ऑफ कोर्स लेमैन की जो परसेप्शन जो है समहाउ वो ठीक है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, that is not advocate, that is not sufficient. उसकी थिंकिंग जो है, उसकी परसेप्शन जो है ठीक है, somehow that is right, but that is not properly right. That is sufficient, but that is not properly sufficient. That is somehow inadequate. वो स्टेटमेंट उसका लेमैन का जो मैंने बोला है कि एथलीट इज सेड राइटली टू रन विद योर लेग्स रादर विद योर हार्ट. ये लेमैन की परसेप्शन है, ये लेमैन का स्टेटमेंट है. But this statement is not somehow incorrect, but it is somehow incorrect. Yes, it is somehow incorrect. How it is somehow incorrect? Because the right and the proper definition and the proper statement regarding this concept that why do we need cardiovascular system in the field of physical education and the sports science, it is incorrect in this case. Why? Because the correct and the proper and the advocate and the sufficient and the justified one definition and the statement is athlete is rightly said to run with their heart rather with their legs. Because this athlete जो है, अगर हम एग्जांपल लेंगे एथलीट जो कैसे चलता है, he runs with their legs. और लेग्स में एक ह्यूमन बॉडी में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज ह्यूमन बॉडी की जो एथलीट की है, इस लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर लिम्स में एथलीट को क्या चाहिए रनिंग के लिए, मूवमेंट जनरेट करने के लिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए, राइट? उसको ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? व्हाई डू एथलीट नीड ऑक्सीजन इन द लेग्स? बिकॉज इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए एथलीट को ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए. और एथलीट को ऑक्सीजन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करने के लिए,
Adenosine triphosphate is considered the cellular currency of the energy. It is the cellular currency of the energy. ये जनरेट करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है हमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायरेक्टली वहां से हम इनहेल करते हैं, यहां से लंग्स में गया, एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज हुए और वर्किंग टिश्यूज तक पहुंच गए। इट इज नॉट लाइक दैट, ये ऐसे ही नहीं है मुंह उठा के भागा वहां से, यहां से हमने इनहेल किया और लेग्स की ओर चला गया। इट इज नॉट लाइक दैट, बट द प्रॉपर मैकेनिज्म इज कि ये लंग्स में जो है सुपीरियर लंग्स के साथ क्या कनेक्ट होता है? लंग्स के साथ क्या कनेक्ट होता है? हार्ट की इन ये वाली पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है। पल्मोनरी आर्टरी में के थ्रू क्या जाता है? जो हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की ओर चला जाता है, और लंग्स के साथ कनेक्ट क्या होता है? पल्मोनरी वेन होती है कनेक्ट, जो जिस पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में क्या आ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, राइट। और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में चला जाता है। इट मींस कि हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दैट इज लिंक्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस हार्ट को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इस हार्ट को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कैसे चलेगा? क्योंकि ब्लड में एक ये कंटेंट एक है, ब्लड में एक प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द मायोग्लोबिन। एक कंटेंट है, ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन बिंडिंग कंटेंट है, जो ऑक्सीजन को बिंड करता है, जो ऑक्सीजन को ले जाता है टुवर्ड्स द वर्किंग टिश्यूज तक, ऑक्सीजन को ले जाता है, राइट। और ये ऑक्सीजन जो है थ्रू द मीडियम ऑफ द ब्लड, through the pathway called the tubes and the channels, through the heart. These are the three components of the cardiovascular system. One is the heart, that we call the pumping organ. Second is the blood, that we call the fluid. And third one is the vessels, that we call the channels, that we call the small tubes, capillaries, channels, pipes. इन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन जो है वर्किंग टिश्यूज तक पहुंचता है। एक एथलीट, एक रनर की एथलेटिक एक्टिविटी के लिए वो वर्किंग टिश्यूज तक पहुंचता है, टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचता है। जब वो टारगेटेड ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वहां पे, इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एटीपी, adenosine triphosphate, the cellular currency of the energy. And muscles जो है, muscles burn that energy. Muscles वो energy burn करता है। जब वो muscles energy burn करता है, there we see the metabolic byproducts. We see the production of the metabolic byproducts. वहां पे metabolic byproducts produce होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब मसल्स ने इसी एनर्जी को यूज किया है ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने में, एटीपी प्रोडक्शन करने में, इन ऑर्डर टू क्रिएट द मैकेनिकल वर्क ऑफ रनिंग। तो वहां मसल्स ने ये वाली एनर्जी यूज की, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। वहां पे मसल्स ये एनर्जी बर्न करते हैं और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, और अल्टीमेटली विच कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ फैटिग, टू द कॉज ऑफ मसल फैटिग। मसल फैटिग में वो कंट्रीब्यूट करते हैं बाद में। अब ये वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये बाई प्रोडक्ट्स, ये एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, हाइड्रोजन आयन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस वहां पे हुए, क्योंकि एनर्जी वहां बर्न हुई, मसल्स ने एनर्जी बर्न की है, तो वहां पे बाई प्रोडक्ट्स एनर्जी बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए। अब ये वाली बाई प्रोडक्ट्स, ये ब्लड जो ये डीऑक्सीजनेटेड बन गया, वहां पे ये इम्प्योर बन गया। अब ये ब्लड जो है ये वापस जाएगा हार्ट की तरफ, क्योंकि हम लेग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा पाथवे कनेक्ट है हार्ट के साथ? इंफीरियर वेना केवा। यस, इंफीरियर वेना केवा इज देयर,
we see there is the inferior vena cava when we talk about the lower extremities of an athlete. लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे तो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये जो है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये रिटर्न जाता है, ये रिमूव हो जाता है वहां से, ये दोबारा से ट्रांसपोर्ट होता है, ये दोबारा से रिटर्न होता है टुवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम द वर्किंग टिश्यूज टुवर्ड्स द हार्ट एंड थ्रू द इंफीरियर वेना केवा पाथवे के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है और डायरेक्टली राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। राइट एट्रियम में जब पहुंचा, जब राइट एट्रियम का ये बंद हुआ, पूरा ये ब्लड पहुंचा वहां पे, तो राइट एट्रियम में क्या जाता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड द ट्राइकास्पिड वैल्यू। इस वैल्यू के थ्रू नीचे आता है और नीचे जब आता है, नीचे से पल्मोनरी आर्टरी लगी हुई होती है जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की ओर ले जाता है। पल्मोनरी आर्टरी दोबारा लंग्स की ओर चला जाता है, इसके दोबारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स में वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यहाँ पे प्योर बन जाता है ये ब्लड और दोबारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। It is only because of the cardiovascular system. तो यहां पे हमें पता चलता है, to conclude we can say that cardiovascular system is wholly and solely responsible for the transportation of the oxygen rich blood, for the transportation of the oxygen to the working tissues, to the targeted organs, to the lower extremities, to the upper extremities whatsoever. These are for that the cardiovascular system is wholly and solely responsible. It is primarily responsible for that. Not only the transportation is the responsibility of the cardiovascular system, but alongside there is the transportation of the nutrients. Nutrients भी चाहिए ना वर्किंग टिश्यूज को एटीपी जनरेट करने के लिए, ग्लूकोज ब्रेकडाउन करने के लिए, लेग्स में मैकेनिकल वर्क ऑफ रनिंग जनरेट करने के लिए, मूवमेंट जनरेट करने के लिए, अपर एक्सट्रीमिटीज में मूवमेंट जनरेट करने के लिए, मैकेनिकल वर्क जनरेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी इसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लाइक द हार्ट फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, लाइक द ट्यूब्स एंड चैनल्स कॉल्ड द पाथवे कॉल्ड द वेसल्स, इनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स द वर्किंग टिश्यूज तक। और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, फॉर द रिमूवल ऑफ द बाई प्रोडक्ट, फॉर द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट in the form of lactate, in the form of carbon dioxide, in the form of hydrogen ions, which further cause muscle fatigue. That is why we can say that cardiovascular system, it plays a vital role. It plays very important role. It is responsible, wholly and solely responsible. That is why we can call it, it is central integrative physiological system. इसलिए हम कहते हैं कि athlete is said, rightly said to run with their heart rather than their legs. Not only जो एथलीट जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट इन्हीं सिस्टम्स के साथ करता है, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ, बल्कि दिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट साइंस, इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट साइंस हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, थर्मो रेगुलेशन, प्रोसेस ऑफ द थर्मोरेगुलेशन, जिससे हमारी बॉडी जो है हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया जो है उस चीज को बैलेंस में करता है। तो दिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द विगरस टाइप ऑफ द वर्कआउट, ड्यूरिंग द से फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ द एथलेटिक एक्टिविटी, वहां पे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस थर्मोरेगुलेशन की मदद से बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जो है
मेंटेन करता है। तो ये ऐसी रेगुलेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म इज नॉट lonely responsible to maintain the temperature of the body. It is because of the cardiovascular system. तो this is the separate concept जो हम पढ़ेंगे, thermoregulation का कंसेप्ट जो है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि इस वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों जरूरत होती है फिजिकल एजुकेशन में, वर्कआउट में, स्टीरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स साइंस में, एथलेटिक एक्टिविटीज में हमें क्यों चाहिए, और एथलीट क्यों जो है हार्ट से चलता है रादर विद योर लेग्स। तो इट वाज आवर कंसर्न। जो नेक्स्ट सेशन जो होगा दैट विल बी अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, तीन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। एक तो हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की पोजीशन, हार्ट के वैल्यूज, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट के वेसल्स, हार्ट के आर्टरीज, दिस विल बी कवर इन दैट विल पोर्शन। एंड ब्लड में हम पढ़ेंगे दिस इज द फ्लूइड, दिस इज द मीडियम एंड द वेसल्स में पढ़ेंगे हम चैनल्स एंड ट्यूब्स, कैसे ये मैकेनिज्म बॉडी का जो नेटवर्किंग सिस्टम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, इन तीन कंपोनेंट्स में हम नेक्स्ट वाले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हैव अ गुड डे।